Hallelujah. Thank you, Jesus. Sorry for the delay by 4 minutes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद हो धन्यवाद. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus Christ, King of glory. We bless you, Lord. King of glory, we bless your holy name. Holy name. Holy name. Hallelujah. Bless your holy name. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तेरी स्तुति हो. यीशु तू है महान. तेरी जय तेरी जय तेरी जय. तू जो आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार. यीशु तू है महान. तेरी जय तेरी जय तेरी जय. सब गाइए. मैं पाप में डूबा ऐसा डूबा ऐसा डूबा. मेरी आँख में आंसू सबने छोड़ा सबने छोड़ा. पर तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार. यीशु तू है महान. तेरी जय तेरी जय तेरी जय. Hallelujah. Let us lift up his holy name. Worship him. Hallelujah. The Lamb slain from the beginning of this universe. For he has atoned our sins with his precious blood. For he has bought salvation for us, not by corruptible things such as silver and gold, but he purchased our redemption, the forgiveness of our sin, healing, divine healing for our bodies, and inheritance in heaven through his precious blood. Let us worship him. उसकी स्तुति करें. वो महान है. हालेलुया. उसके नाम की महिमा करें. उसके जैसा कोई नहीं है. यीशु मसीह अद्भुत है, अलौकिक है. हालेलुया. हालेलुया. वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाने के लिए आया. हालेलुया. सब अपना मुंह खोले. ओपन अप योर माउथ and just begin to release the name of Jesus. Hallelujah. Gabriel, the archangel, spoke unto Mary. He said, thou shalt call him Yahushua. Hallelujah. You call his name Yahushua. His name is Yahushua HaMashiach. Release that name. उस नाम को खोलें. Yahushua HaMashiach. बोले मेरे साथ. Say after me. Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach. I release your name, Yahushua, all around me, in my house, all around my family, my household, the locality where I live, the town, the city where I live. I release your name, Yahushua. मैं तेरे नाम को खोलता हूँ. बोले यहोशुआ तेरे लहू की जय. यहोशुआ तेरे खून की जय. यहोशुआ तेरे पवित्र लहू की जय. यहोशुआ तेरा धन्यवाद. यहोशुआ तेरा धन्यवाद. यहोशुआ तेरा धन्यवाद. हालेलुया. सब आंखें बंद करें, प्रार्थना करें. Father, we lift up the name that is above every name, the name that you have invoked upon us, that we might be known by that name. Father, we thank you that we are hidden in that name, the name that is above every name, the only exclusive name given under heaven among men whereby all mankind might be saved.
the glorious name of Yahushua HaMashiach. We cover ourselves under that name. That name is a strong tower. The name is impregnable castle. The name is a lofty pavilion, and we run into it and we are safe. Hallelujah. And nothing can touch us as long as we are hidden in that pavilion. मसीह तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तेरे नाम में प्रभु मैं तेरे इन लोगों को जो ऑनलाइन है, तेरे नाम में इन्हें छिपाता हूँ, तेरा खून मैं इनके ऊपर छिड़कता हूँ। यीशु मसीह, आज तेरे अद्भुत वचन को प्रभु जी आप खोलिएगा, हमारे ऊपर खोलिएगा अपने अद्भुत वचन को। हालेलुया, हालेलुया, आपके नाम की महिमा हो यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत महत्वपूर्ण एक विषय जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी सिस्टर बेट्सी, आई वोंट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश because there are, quite a large number of people who won't understand English. Many won't even have a clue when I speak in English. So I really apologize. But stay with us. You can, capture the spirit. I am going to teach on the threshing floors. Such a powerful subject in the Word of God. Threshing floors. Hallelujah. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ थ्रेशिंग फ्लोर के ऊपर। भाइयों और बहनों, वो जगह है ये जहां गेहूं को, फसल को कूटा जाता है और जो घास फूसा होता है उसे निकाला जाता है, किया जाता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं पहले दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय, दूसरे सैमुएल की पुस्तक निकाल लीजिएगा और उसका 6 अध्याय। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। शाऊल एक राजा था जिसने इज़राइल के ऊपर राज्य किया। शाऊल परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में राजा नहीं था। परमेश्वर की इच्छा है, आज वो विषय नहीं है। ये परमेश्वर की अनुमति दी गई परमेश्वर की इच्छा थी कि परमेश्वर ने शाऊल को राजा बना दिया, लेकिन ये व्यक्ति कभी यहोवा का खोजी नहीं था। असल में ये अपने बाप के गधे खोज रहा था और इसे मार्ग में पवित्र आत्मा मिल गया। इसलिए इसने अपने जीवन में कभी भी पवित्र आत्मा के अभिषेक का मूल्य नहीं जाना। 40 वर्ष ये इज़राइल का राजा रहा और शाऊल एक बहुत बढ़िया कुशल पॉलिटिशियन था, एक सियासी नेता था। शाऊल की जो पॉलिसीज़ थी, फॉरेन पॉलिसीज़, जो इज़राइल के साथ पड़ोसी मुल्कों के साथ कैसे उसने डील किया, वो पॉलिसीज़ बहुत बढ़िया थी। शाऊल के समय इकॉनमी इज़राइल की बूम की। शाऊल ने बड़े सुधार किए, बड़े विकास किए। जैसे आज भी दुनिया की सरकारें विकास के एजेंडा पे आती हैं, बहुत विकास किया इज़राइल का। इज़राइल फाइनेंशियली, इज़राइल इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली संपन्न हुआ, आशीष आई। लेकिन ये व्यक्ति कभी भी यहोवा का खोजी नहीं था। आपको मालूम, परमेश्वर को इन बातों से कोई मायने नहीं। वचन में देखिए, जितने राजा थे, उत्तरी राज्य के इज़राइल के, दक्षिणी राज्य यहूदा के, आपको मालूम जब उनका जीवन समाप्त हुआ, वो मर गए, उन्हें कब्र में रखा गया, तो उनके जीवन के विषय में आखिरी शब्द क्या कहे गए? जो राजा प्रभु के पीछे चला, जिसने यहोवा से प्रीति की, जिसने यहोवा के मार्गों को खोजा और इस्राएली प्रजा को यहोवा के चरणों में जोड़ा, उसके विषय में यहोवा ने लिखा वो राजा धर्मी था और वो अपने पिता दाऊद के मार्गों में चला और वो मर गया और उसे शाही गार्डन में मिट्टी दे दी गई। लेकिन जो दुष्ट राजा थे, उनके विषय में क्या प्रभु कहता है? वो अपने पिता से भी बढ़ के दुष्ट था, उसने यहोवा को क्रोध दिलाया और वो मर गया और उसे फलानी जगह मिट्टी दे दी गई। बस ये समरी लिखी गई। उनकी उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया गया। सियासी हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक सुधार हो, केवल उनका जीवन प्रभु के संग कैसा था, उन्होंने प्रजा को प्रभु के संग जोड़ा या नहीं, उनके द्वारा आत्मिक जागरण आया या नहीं, ये बात प्रभु की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है।
शाऊल कभी प्रभु का खोजी नहीं हुआ, लेकिन दाऊद एक जवान लड़का है जो भेड़ें चराता है। लेकिन जब अपने पिता की भेड़ें लेके जाता है, दूर दराज इलाकों में अक्सर हफ्ते हफ्ते रहता है, उसने यहोवा को ढूंढना शुरू किया। इस्राएल के परमेश्वर का खोजी लड़कपन से बन गया। आपको मालूम, भजन उसने लिखे हैं राजा दाऊद ने। जब उसने समय बिताया यहोवा की हजूरी में, भजन लिखता है, तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया, तड़के मैं तैनू ढूंढ। सुबह उठ के यहोवा को ढूंढता है, फिर कहता रात के पहरों में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, आधी रात को उठ के मैं तेरी स्तुति करूंगा। वो यहोवा का खोजी था और उसे यहोवा मिला। यहोवा ने उसे यश दिया, सामर्थ दी, अभिषेक दिया। और आपको मैंने यहोवा ने उसके विषय में क्या कहा? किसी के विषय में नहीं कहा। यहोवा ने कहा ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल के मुआफिक है। और हिब्रू टेक्स्ट बताता है ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल तक पहुंचने के मार्ग को जानता है। वो प्रभु का आराधक था, खोजी था। जैसे ही दाऊद राजा बना, आपको मालूम दाऊद ने सबसे पहला काम क्या किया? उसने इस्राएली पुरनियों को, बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारे परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक वो एली के दिनों से हमारे मध्य में नहीं है। आपको मालूम, एली याजक था शिलो में, और वचन में लिखा उसके बच्चे लुच्चे थे। और इज़राइल में आत्मिक पतन हुआ एली के समय। उसके बेटे परमेश्वर की हैकल में स्त्रियों के साथ दुराचार करते थे, जनाकारी होती थी हैकल में, और परमेश्वर को चढ़ाने वाली पवित्र चीज़ों को अशुद्ध किया जाता था। ये एली के बच्चों को यहोवा का डर नहीं था। पूरा इस्राएल अंधकार में डूब गया। और आपको मालूम, फिलिस्तियों ने उनके ऊपर हमला किया और वो ऐद के संदूक को लेकर गए दूसरी मर्तबा, जय जयकार कर रहे थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहोवा अंदर नहीं था। आपको मालूम, कई चर्चों के अंदर खाली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड है, यहोवा की हजूरी नहीं है। आप यहोवा की हजूरी को अपनी चर्च के महंगे महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते, बढ़िया टैलेंटेड गाने वालों को रख के नहीं कर सकते, जबरदस्त मोटिवेशनल प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग लेके रिप्लेस नहीं कर सकते। यहोवा की उपस्थिति चाहिए। तो दुश्मन आए, उन्होंने मार दिया उनको और ऐद के संदूक को ले गए, वाचा के, साक्षी के संदूक को ले गए, और वो इज़राइल में नहीं लौटा। आपको मालूम, आर्क ऑफ द कवेनेंट वाज द लाइफ लाइन ऑफ इज़राइलिट्स। गॉड ऑलमाइटी हु क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ, he promised my presence will reside right over the mercy seat where the blood is sprinkled। जहां पे लहू उंडेला जाता था, उस लहू के ऊपर पवित्र आत्मा जुम्बश करता था। 5 बार प्रभु ने पुराने नियम, मूसा की 5 पुस्तकों में 5 बार मूसा को ये बताया, मैं तुझसे कहाँ मिलूंगा। प्रभु ने कहा, वो जो कुरूबों के जहां पे पंख मिलते हैं, और वो मर्सी करुणा की जगवेदी जिसके ऊपर लहू उंडेला जाता है, उसके मध्य में मेरी हजूरी तुझसे बातें करेगी। यहोवा वहां रहता था। और वो ऐद का संदूक दुश्मन, दाऊद सबसे पहला काम ये करता है, वाचा के संदूक को लेकर आता है। लेकिन दाऊद को पूरी विधियां मालूम नहीं है। एक लकड़ी का गड्ढा बनाया जाता है, काठ, उस काठ के ऊपर रख के ऐद के संदूक को लाया जाता है, वाचा के संदूक को। और उस संदूक को लाने में कुछ लोग सहायता कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम ऊजा है। क्या नाम है उसका? ऊजा। पढ़िएगा 2 शमूएल उसका 6 अध्याय। और उसको लेकर आ रहे हैं लोग, गाते बजाते ऐद के संदूक को लेकर आ रहे हैं। 2 शमूएल 6 अध्याय का 6 वचन पढ़िए। व्हेन दे केम टू द थ्रेशिंग फ्लोर ऑफ नकोन। कहां पे आ गए वो? थ्रेशिंग फ्लोर, जिसे आपकी हिंदी की बाइबल में खलियान लिखा होगा। जब ऐद का संदूक, वाचा का संदूक कहां पे आ गया? थ्रेशिंग फ्लोर में। थ्रेशिंग फ्लोर के विषय में आज आपको बताने जा रहा हूं, जहां पे अनाज में से फूस निकाली जाती है, गंदगी अलग की जाती, चाफ अलग कर दी जाती है। पहले ज़बूर में लिखा है, धर्मी लोग गेहूं हैं और अधर्मी लोग क्या हैं? भूसा है, जो जला दिया जाता है। ये भूसा अलग किया जाता है असली फसल में से। कहां
में, खलियान में, जब खलियान में ऐद का संदूक आ गया, खलियान में धुलाई होती है। खलियान एक जगह है सेपरेशन की, खलियान में शिफ्ट किया जाता है। हालेलुया, खलियान वो जगह है। जब ऐद का संदूक वहां पे पहुंचा तो लिखा है, यहां पे लिखा है, when they came to the threshing floor for Nakon, Uzzah reached out and took hold of the ark of God because oxen stumbled. थ्रेशिंग फ्लोर में आके बैल, मैंने तस्वीरें डाली हैं अपनी फेसबुक में, देखिएगा थ्रेशिंग फ्लोर की सूरत क्या होती है। पत्थरों को काट काट के बनाया गया था, बैल टंबल किए और उसने अहद के संदूक को स्टेबल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आपको मालूम किसका अहद का संदूक है ये? जो सृष्टि को थाम के रखता है, जिसने बिना बिना पोल्स के इस अंबर रूपी तंबू को ताना हुआ है, पृथ्वी को बिना टेक के लटकाया है। आपको मालूम बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिसे आकाशगंगा बोलते हैं, बिलियंस। साइंटिस्ट बोलते हैं परहैप्स मोर देन 400 बिलियन। एक एक बिलियन गैलेक्सी में जिलियन और ट्रिलियंस तारे हैं। आपको मालूम ऐसे तारे हैं ब्रह्मांड में जिसके अंदर हमारी खरबों पृथ्वियां समा सकती हैं। इतना बड़ा ब्रह्मांड उसने रचा है। उसकी हजूरी को इंसान के हाथों की जरूरत नहीं है। जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसी समय यहोवा ने उसे मार दिया। जजमेंट फेल, क्योंकि खलियान, थ्रेशिंग फ्लोर वो जगह। आज कलीसिया ये वचन नहीं सुनना चाहती, क्योंकि पासवान कलीसिया को प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत, पॉजिटिव थिंकिंग और मोटिवेशनल प्रीचिंग, सीकर सेंसिटिव चर्च, ये चीजें सिखाते हैं। यहोवा का सच्चा कलाम नहीं सिखाते। यहोवा की पवित्रताई, यहोवा की शुद्धता, यहोवा की धार्मिकता, यहोवा के न्याय, इन्हें कंप्रोमाइज किया गया सूडो सुसमाचार सुनाने के लिए। तो कहां पे आ गया ऐद का संदूक? थ्रेशिंग फ्लोर में, और यहोवा ने मार दिया। जजमेंट आ गई। और दाऊद, आपको मालूम, बहुत दुखी हो गया कि यहोवा परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। और फिर वो कंसल्ट करने लगा परमेश्वर के दासों से। तो परमेश्वर के दासों ने राजा दाऊद को बताया कि परमेश्वर की हजूरी को कैसे लाया जा सकता है। आपको मालूम, ऐद के संदूक के लिए हिब्रू वर्ड जो है वो एक्चुअली एरामिक वर्ड है, इदार। ये आपको मिल जाएगा, इसका जिक्र पहली बार आपको इसका जिक्र मिल जाएगा डैनियल 2:35 में, दानियल 2:35 में। आप बहुत से रेफरेंसेस हैं इसके, मैं आपको बहुत सारे हवाले दूंगा बाइबल से। हिब्रू में ये जो वर्ड है, ये 3 वर्ड से, ये वर्ड है हिब्रू लेक्सिकन में H147, हिब्रू में एक्चुअली जो एरामिक इक्विवेलेंट है, और ये बनता है अलफ दालत रेश, अलफ दालत रेश। अलफ परमेश्वर का प्रतीक है। अलफ का मतलब होता है हेड, मुखिया, परमेश्वर। अलफ परमेश्वर, दालत का मतलब होता है दरवाजा, और रश जो है ये राशा वर्ड में भी यूज हुआ है, रफाइमों के लिए भी यूज हुआ है, अर्थात वो जगह जहां पे परमेश्वर एक डोर खोलता है, जहां पे गंदगी को बाहर निकाला जाता है। हालेलुया। आपको मालूम, ये जो थ्रेशिंग फ्लोर है, आपको मैं वचन दूंगा, आप लिख लीजिएगा, आप बाद में इन्हें पढ़िएगा। थ्रेशिंग फ्लोर कौन सी जगह है, इसके विषय में, ये जो थ्रेशिंग फ्लोर जिसे हम खलियान बोलते हैं, ये इस्राएलियों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जगह थे। ये वो जगह थे जहां से बातचीत की जाती थी, कंसल्ट किया जाता था। यू कुड गो एंड कंसल्ट विद द लॉर्ड। पहला राजा 22 अध्याय का 10 वचन पढ़ लीजिएगा, और 2 क्रॉनिकल्स 18 का 9, 1 किंग्स 22 वर्स नंबर 10 एंड 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 18 एंड वर्स नंबर 9। और हम पढ़ते हैं याकूब बहुत सारे लोगों के एक झुंड को लेकर आया, कहां पे? खलियान में,
और वहाँ पे उन्होंने विलाप किया अपने पिता के लिए। पढ़ सकते हैं आप जेनेसिस 50, उसके उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय 10 और 11 वचन में। मैं पहले आपको रेफरेंस फिर दे दूं। थ्रेशिंग फ्लोर में कंसल्ट करते थे यहोवा से। पहला राजा 22 का 10, दूसरा वचन है दूसरा इतिहास 18 का 9। फिर यूसुफ वहाँ पे मॉर्न करता है, विलाप करता है, बहुत भीड़ को लेके विलाप की जगह है। ये है उत्पत्ति 50 अध्याय का 10 और 11 वचन, ठीक है। और यहीं पे ये वो जगह है जहां पे थ्रेशिंग की जाती है, गेहूं अलग और घास फूस अलग। पहला इतिहास 21 अध्याय का 20 वचन पढ़ लीजिएगा बाद में। यहीं पे विनोइंग की जाती है। विनोइंग का मतलब ऐसे वो लकड़ी का हथियार होता है, उससे भूसा अलग किया जाता है। रूथ की पुस्तक 3 अध्याय का 7 वचन आप पढ़ लीजिएगा। और आपको मालूम ये जो जगह है थ्रेशिंग फ्लोर, इस पे यहोवा की ब्लेसिंग ठहरती है। जोएल की पुस्तक 2 अध्याय के 24 वचन में पढ़िएगा। यहोवा खलियान को ब्लेस करता है जब इस्राएली प्रजा यहोवा के संग चलती है, और यहोवा खलियान को, जिसे थ्रेशिंग फ्लोर बोलते हैं, लानत देता है। होशे नबी की पुस्तक 9 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में लिखा है, जब इस्राएली प्रजा यहोवा की आज्ञा नहीं मानती। आपको मालूम यहां से यहोवा अपनी इमदाद भेजता है, सहायता भेजता है सुपरनैचुरल अपनी प्रजा को बचाने के लिए। 23 का 1 से 5, पहला सैमुएल 23 का 1 से 5, दूसरा राजा और न्यायियों की पुस्तक 6 अध्याय के 2 से 14। गिदाउन नाम का व्यक्ति, जब मिद्यानी लोग इजरायलियों को सताते हैं, ऑप्रेस करते हैं, उनका सब कुछ लूट के ले जाते हैं, तो इसी खलियान में यहोवा का दूत उसे दिखाई देता है। और यहोवा का दूत उसे कहता है, अब तेरे शत्रुओं के ऊपर तू टूट पड़, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। ये बड़ी ही अलौकिक जगह है। आपको मालूम ये वो जगह भी है, खलियान, जहां पे यीशु मसीह दर्शन देता था। थियोफनी जिसे बोलते हैं। यीशु मसीह मरियम की कोख में जन्म लेने से भी पहले है। वो अनंत है, अजन्मा है, हालेलुया है। मरियम की कोख में जन्म लेने से पहले यीशु मसीह, अदन के बाग में आदम से जो मिलता था वो यीशु है, हालेलुया। जिसने मूसा जिसका मूसा ने दीदार किया, जिसे इब्राहिम हमारा पिता, उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय में वो जो 3 व्यक्ति आते हैं, उनमें जो सेंटर में है वो प्रभु है। 2 दूत हैं और इब्राहिम को पहचान है, वो दूतों के आगे नहीं झुकता, दंडवत करता, वो प्रभु यीशु के आगे दंडवत करता है, उससे बातें करता है। और 19 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में 2 दूत लूत को बचाने के लिए चले जाते हैं, हालेलुया। ये वो है, 3 जवान यहूदी लड़कों को आग की भट्टी में मिलता है, हालेलुया। ये वो है जिसके विषय में राजा का चौथा व्यक्ति कौन है? वही है जिसका हाथ उस राजा की दीवार पे लिखता है कि तुझे तोला गया और तू कम पाया गया, हालेलुया। ये वही है भाई और बहनों, तो मनोहा फैमिली को, जिनके घर में समसून पैदा होना था, खलियान में उस स्त्री को दर्शन देता है, और फिर दूसरी मर्तबा उसके पति को भी दर्शन देता है, हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी अलौकिक जगह है। अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपनी बाइबल खोलिएगा और पढ़िएगा 2 सैमुएल, उसका 24 अध्याय निकालिए। 2 सैमुएल का 24 अध्याय और पढ़िए। आप अपने पास बाइबल अवश्य रखिएगा और जो वचन मैं देता हूं उनको पढ़िए, हालेलुया। 2 सैमुएल 24 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, और मैं चाहता हूं आप एक और वचन भी निकाल लीजिए, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। पहला इतिहास उसका 21 अध्याय, यहां पे लिखा है 2 सैमुएल 24 अध्याय के पहले वचन में, अगेन द एंगर ऑफ द लॉर्ड बर्न्ड अगेंस्ट इजराइल एंड ही इंसाइटेड डेविड अगेंस्ट देम सेइंग गो एंड टेक अ सेंसस ऑफ इजराइल एंड जूडा। यहां लिखा है यहोवा का क्रोध भड़का, किसके विरोध में? दाऊद के विरोध में। और यहोवा ने क्या किया? यहोवा, यहां पे लिखा है यहोवा ने दाऊद को इंसाइट किया कि दाऊद क्या करे, इसराइलियों की गिनती करे, सेंसस ले। अब हम 1 क्रॉनिकल्स में से भी पढ़ते हैं, पहला इतिहास
उसका 21 अध्याय निकाल लीजिएगा, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 21। हालेलुया। अब मैं पढ़ता हूं। यहां लिखा है, सेटन रोज अप अगेंस्ट इजराइल एंड इंसाइटेड डेविड टू टेक सेंसस ऑफ इजराइल। अब दोनों वचन को आप कंपेयर करें तो ऐस डिस्क्रिपेंसी लगती है, लगता है विरोधाभास है। पहली जगह लिखा है यहोवा उसने उसे इंसाइट किया, दूसरी जगह लिखा है शैतान इजराइल के विरुद्ध खड़ा हुआ। तो दोनों में विरोधाभास नहीं है भाई और बहनों। शैतान परमेश्वर का नौकर है, हालेलुया। परमेश्वर उसे अपने मकसदों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, सेकंड क्रॉनिकल्स के दूसरे इतिहास के 18 अध्याय के 20 वचन में एक बड़ी अलौकिक दृश्य है। मकाया जो प्रभु का दास है, दुष्ट राजा एक भले राजे के संग जाता है पूछने के लिए कि क्या किया जाए, लड़ाई की जाए या ना की जाए। तो प्रभु का भक्त जो है वो दुष्ट राजा को पहचानता है, लेकिन धर्मी राजा का सम्मान करता है। और वो क्या कहता है, पहले तो वो नहीं सच्चाई बताता, लेकिन बाद में क्या बताता है कि मैंने यहोवा को बड़े सिंहासन पे बैठे देखा और यहोवा ने पूछा कौन जाके अहाब को भरमाएगा। तो वचन में लिखा है उसके लेफ्ट हैंड साइड से एक दुष्टात्मा निकली और बोली मैं जाके भरमाऊंगा। प्रभु ने पूछा कैसे, उसने बोला मैं उसके नबियों के मुंह में घुस जाऊंगा। राजाओं के नबी होते थे, उनके राजमहल में रहते थे, पॉलिटिकल प्रॉफिट होते थे ये। दे वर पेड बाय द गवर्नमेंट एंड दे यूज्ड टू प्रोफेसाई गुडी थिंग्स फॉर द किंग्स एंड डीमंस यूज्ड टू ड्वेल इन देयर हार्ट्स। डिमोनिक स्पिरिट प्रोफेसी करती थी उनके द्वारा। तो प्रभु ने बोला कि ये स्पिरिट जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड प्रभु के पवित्र एंजल होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दूसरे एंजल हैं। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल करता है। प्रभु आपको मालूम क्या कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 30-31 वचन में पढ़िएगा। प्रभु कहते हैं पतरस से कि शैतान ने तुझे मांगा कि तुझे क्या करे, सिफ्ट करे। हमारे पंजाब में इधर एक चीज़ होती है उसे छज्ज बोलते हैं, उसके अंदर दाने डाल के ऐसे ऐसे हिलाए जाते हैं, ऊपर हिलाए जाते हैं तो हवा उसके अंदर से जो भूसा होता निकाल लेती है। शैतान ऐसे सिफ्ट करता है। उसने हेवन के सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी, किसके खिलाफ, पतरस के खिलाफ, क्योंकि उसके अंदर घमंड था। तो प्रभु कहते हैं मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। प्रभु स्पिरिट में गया, पिता के कोर्ट में जाके उसने पीटर को डिफेंड किया। तो प्रभु ने प्रार्थना की, शिफ्टिंग नहीं गई, वो छज्ज में डाल के छांटे जरूर गए, लेकिन प्रभु कहते हैं मैंने प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। थ्रेशिंग फ्लोर में ऐसे ऐसे छांटा जाता है और कई बार परमेश्वर इन ताकतों को इस्तेमाल करता है। कई बार जो दुष्ट राजा होते हैं उनको इस्तेमाल करता है। कई बार सरकारों को, गवर्नमेंट को लोग इस्तेमाल करता है। कई बार परिस्थितियों को प्रभु इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आपको मालूम कि यहां पे लिखा है दाऊद सेंसस लेता है और दाऊद के अंदर घमंड आता है कि मेरे पास कितनी सेना है, मेरे पास मिलिट्री पावर कितनी है, मैं कितना संपन्न राजा हूं, कितनी शक्ति, कितना बल मेरे पास है। वचन में लिखा है हमें रथों और घोड़ों पे भरोसा नहीं करना, हमें अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा करना है, क्योंकि जिन्होंने किया वो गिर गए। हालेलुया। यहोवा हमारी सनातन की चट्टान है। हमारा विश्वास, हमारी आस्था का स्थिर गढ़ हमारा प्रभु है। हालेलुया। धन नहीं है, हमारा बुद्धि ज्ञान नहीं है, हमारे संसार के अंदर जो रसूख है, इन्फ्लुएंस है, वो नहीं है। हमारा प्रभु ही, हालेलुया, और एकमात्र प्रभु ही हमारा आश्रय है। हालेलुया। तो आपको मालूम क्या होता है, लिखा है अगर इसी का पहला क्रॉनिकल्स 21 अध्याय और उसका आप पढ़ लेंगे 7 वचन, पहला इतिहास 21 अध्याय का 7 वचन, यहां लिखा दिस कमांड वॉज ऑल्सो इवल इन द साइट ऑफ गॉड सो ही पनिश्ड इजराइल। यहोवा की दृष्टि में राजा दाऊद का आदेश की गिनती की जाए, सेंसस लिया जाए, यहोवा की दृष्टि में घृणित था और प्रभु ने इजराइल को सजा दी। आपको मालूम
कई बार परमेश्वर ने जब कलीसिया को सजा देनी होती है तो वो पास्टर से दुष्ट काम करवाता है। कई बार प्रभु ने जब अपनी प्रजा को दंड देना होता है तो राजाओं के द्वारा गलत काम करवाता है। और जब परमेश्वर ने आशीष देनी होती है वो धर्मी लोगों को खड़ा करता है। हालेलुया। कैल्विन ने ये बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दी थी जिसने कैल्विनिज्म शुरू किया। इफ गॉड वॉन्ट्स टू पनिश अ नेशन ही विल ब्रिंग ईवल किंग्स। हालेलुया। तो यहां लिखा है, देन डेविड सेड टू गॉड, आई हैव सिन्ड ग्रेटली बाय डूइंग दिस, नाउ आई बेग यू टेक अवे द गिल्ट ऑफ योर सर्वेंट, आई हैव डन ए फूलिश थिंग। प्रभु से क्या कहता है दाऊद कि मैंने गलत। दाऊद क्यों यहोवा के आगे उसके दिल के मुआफिक है? क्योंकि दाऊद तुरंत अपनी गलती मानता है। दाऊद घमंडी नहीं है। बहुत से लोग अपनी गलती नहीं मानते, घमंड में रहते हैं और सजा के पात्र बन जाते हैं। तो क्या लिखा है, द लॉर्ड सेड टू गैड, गाद नबी को बोला, उससे डायरेक्ट बात नहीं की। डेविड का सीयर है वो, दाऊद का नबी है। गो एंड टेल डेविड, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज, आई एम गिविंग यू 3 ऑप्शंस, चूज वन ऑफ देम फॉर मी टू कैरी आउट अगेंस्ट यू। 3 तेरे को बातें बता रहा हूं मैं, एक चुन ले। क्या है? सो गॉड went to David and said to him, this is what the Lord says, take your choice। अब चुन ले कि आज 3 सजाएं हैं। पहली सजा क्या है? 3 years of famine, 3 साल का अकाल पड़ेगा। 3 months of being swept away, 3 महीने तुम्हें खदेड़ दिया जाएगा। Before your enemies with the sword, with their swords overtaking you, और 3 days of sword of the Lord, या 3 दिन यहोवा की तलवार हो। डेज ऑफ प्लेग इन द लैंड विद द एंजल ऑफ द लॉर्ड रेवेजिंग एवरी पार्ट ऑफ इजराइल। नाउ देन डिसाइड हाउ शुड आंसर द वन हु सेंट मी। गाद नबी बोलता है 3 ऑप्शन है भैया। एक तो ये है कि 3 साल का फैमिन हो, 3 महीने बिल्कुल तुम्हें खदेड़ दिया जाए बिफोर योर एनिमीज और उनकी तलवार तुम्हारे ऊपर आए, या फिर तीसरी ऑप्शन है कि यहोवा की सोड, यहोवा की तलवार आए और यहोवा की तलवार तुम्हारे ऊपर आए, डेज ऑफ प्लेग आए और यहोवा का दूत आके सजा दे। बताओ तुमने क्या चुनना है? तो आपको मालूम दाऊद क्या कहता है 13 वचन में? पहला इतिहास 21:13 दाऊद, डेविड सेड टू गैड, उसके नबी को बोला, आई एम इन डीप डिस्ट्रेस, लेट मी फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी इज वेरी ग्रेट, बट डू नॉट लेट मी फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ ह्यूमंस। क्या कहता? दाऊद प्रभु को जानता है, उससे पाप हुआ है लेकिन वो यहोवा को जानता है। उसके पास यहोवा का थियोलॉजिकल ज्ञान नहीं है, यहोवा को जानता है। उसे पता है यहोवा विलंब से कोप करने वाला है, अपने क्रोध में भी करुणा नहीं भूलता है, अत्यंत दयालु है और वो वाचा की ओर दृष्टि करता है। उसने कहा मैं शत्रु के हाथ में नहीं पड़ूंगा, मुझे यहोवा के चरणों में डाल दिया जाए। तो वचन में क्या लिखा है? 14 वचन, सो द लॉर्ड सेंट अ प्लेग ऑन इजराइल, 70,000 men ऑफ इजराइल फेल डेड। 70,000 बंदा मर गया। क्या आया? प्लेग आई। आपको मैंने बताया था प्लेग के लिए नाम क्या है। प्लेग, पेस्टिलेंसेस, सोड, ये अन्य जाति के देवताओं के नाम है। ये पढ़ो, वचन को खोजो, बाइबल भरी पड़ी है डीप बातों से, हिब्रू में रिसर्च करो। तो वचन में लिखा, यहोवा ने अपना हाथ हटाया और उन दुष्ट शक्तियों के हवाले इजराइल को किया। 70,000 व्यक्ति मर गया। एंड गॉड सेंट एन एंजल टू डिस्ट्रॉय जेरूसलम, बट एज द एंजल वॉज डूइंग सो द लॉर्ड सॉ इट एंड रिलेंटेड। प्रभु ने देखा और प्रभु रुक गया। एंजल जब आया बाद में और जब ऐसे कर रहा था तो प्रभु रुक गया। कंसर्निंग द डिजास्टर एंड सेड टू द एंजल हु वाज डिस्ट्रॉइंग द पीपल, इनफ, विथड्रॉ योर हैंड। एंड द एंजल of the Lord was standing at the threshing floor of Aruna the Jebusite। कहाँ पे खड़ा है दूत भाइयों, भाई लोगों, भाई और बहनों? खलियान में खड़ा है। ये घटना कहाँ घट रही है? थ्रेशिंग फ्लोर में, खलियान में, जहाँ पे गेहूं अलग और भूसी अलग होगी, वहाँ पे खड़ा है। कलीसिया इस समय खलियान में है। ये आग में से निकाले जाने वाला समय है। मैं कल आपको बता रहा था दानियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय से कि आग में से निकाले जाएंगे इस समय लोग, ताकि पवित्र और पवित्र हो जाएं और आने वाले समय में यहोवा की आशीष उनके ऊपर उतरे
और वो उस विपत्ति से बचा लिए जाएं जो जगत पे आने वाली है। खलियान में कलीसिया है। पासवानों को अब ये बताना है, गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, वीजे लगवा लो, ये नहीं करना, ये सच्चा कलाम बताना है। कहाँ खड़ा है दूत? खलियान में खड़ा है। खलियान कौन सी जगह है? वो जगह है जहां पे यहोवा ने उजा को मार दिया। वो ऐद का संदूक लेके आ रहा था, यहोवा ने मार दिया उसे। यहां पे जजमेंट आती है। ये वो जगह है जहां पे लानत भी आती है, वो जगह जहां पे बरकत आती है। ये वो जगह जहां पे यहोवा बोलता और बातें करता है। ये वो जगह है जहां पे यहोवा का इकलौता पुत्र यीशु मसीह दर्शन भी देता है। पारलौकिक जगह है। ये डिपेंड करता आपका जीवन कैसा है, प्रभु के संग आपका संबंध कैसा है। वचन में लिखा है खलियान के अंदर कौन खड़ा है? दूत खड़ा। डेविड लुक्ड अप एंड सॉ द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टैंडिंग बिटवीन हेवन एंड द अर्थ। इतना बड़ा दूत है, पृथ्वी और आकाश दोनों को कवर कर रहा है। महान दूत खड़ा है, पृथ्वी और आकाश को कवर कर रहा। नीचे क्या है? थ्रेशिंग फ्लोर है। वो जगह जहां गेहूं अलग किया जाता है, भूसा अलग किया जाता है जिसे जला दिया जाता है। वो जगह जहां आग के द्वारा ताया जाता है। वो जगह जहां गुप्त पाप, बदकारियां, हर तरह की गंदगी जो अंदर छिपी है उसे निकाला जाता है। वो जगह जहां से घमंड दूर किया जाता है। प्रभु कहता है हर एक पहाड़ में समतल करूंगा, हर एक जो घाटी है, खाली है जो अंदर से, उसको भर दूंगा। जो खाली है वो भरे जाएंगे, और जो पहाड़ सरीखे घमंडी है यहोवा उन्हें झुकाएगा, क्योंकि घमंड यहोवा के सामने नहीं ठहर सकता। हर गुप्त पाप, हर बदकारी, हर बुरी मनसा धोई जाएगी, आग में से निकाला जाएगा। ये थ्रेशिंग फ्लोर है जहां गेहूं अलग होगी। यहोवा भूसी को गेहूं के साथ कभी भी अपने गोडाउन में नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? वो दूत ऐसे खड़ा है, पृथ्वी और आकाश को कवर कर रहा है, और लिखा है उसके हाथ में तलवार है और यरूशलेम की ओर एक्सटेंड की। देन डेविड एंड द एल्डर क्लोथ्ड इन सैकक्लॉथ फेल फेस डाउन। दाऊद ने अब बुजुर्ग ले लिए इजराइल के। बुजुर्गों को आगे आना है, प्रभु के लोगों को आगे, मुंह के भार गिर जाना भाई और बहनों, ताकि उसकी करुणा उतरे पृथ्वी के ऊपर, उसका प्रकोप टल जाए। डेविड सेड टू गॉड, वॉज इट नॉट आई हु ऑर्डर्ड द फाइटिंग मैन टू बी काउंटेड? I, the shepherd, have sinned and have done wrong. These are but sheep. What have they done? Lord my God, let your hand fall on me and my family. But do not let this plague remain on your people. आप देखते हैं दाऊद कितना अद्भुत बंदा है। दाऊद यहोवा से कहता है मैं अगुआ हूं। आपको मालूम ये अगुआ होता है, सच्चा अगुआ प्रभु का। वो प्रभु के आगे जाता है, एंजल के आगे। प्रभु का एंगर है, प्रभु सजा मुझे दे, मैं गडरिया हूं, मुझे सजा दे और मेरे घराने को सजा दे। ये होते हैं सच्चे सेवक, सच्चे जो प्रॉफिट होते हैं, सच्चे जो अपोस्टल होते हैं, सच्चे जो गडरिये होते हैं भाई और बहनों। वो कलीसिया को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रभु की कलीसिया के लिए रोते हैं प्रभु के आगे। आपको मालूम महायाजक जब प्रभु के आगे जाता था योम किपुर के दिन, प्रायश्चित के दिन, उसके यहाँ पे 12 पत्थर होते थे, याकूब के 12 गोत्र, और वो प्रभु की हजूरी में खड़ा होकर अपने लिए कुछ नहीं मांगता था। वो केवल इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए दुआ करता था। ये होते हैं सच्चे दास। कलाम को तोड़ मरोड़ के लोगों की जेबों से पैसा ऐंठना और उन्हें डायमंड पार्टनर और प्लेटिनम पार्टनर बनाना उनका काम नहीं होता। वो परमेश्वर के घर को बिजनेस में नहीं बदलते। यहां पे लिखा है उसने प्रभु से कहा मुझे सजा दे मेरे घराने को। देखा आपने ऐसा पादरी कभी, पासवान, जो प्रभु को कहे मेरी इस कलीसिया को बरकत दे दे, मुझे दे सजा, मेरा पाप है। ये है दाऊद। आपको मालूम यीशु मसीह जब यरीहो में जा रहा था, बरतिमेई जो जन्म से अंधा था वो भीख मांग रहा था और पूछता कौन है। पता लगा यीशु जा रहा है। वो चिल्ला के कहता है दाऊद की संतान। जब यीशु मसीह को के कान में गया ना शब्द दाऊद के बेटे, यीशु मसीह वहीं रुक गया। दाऊद हमारा पिता अद्भुत है, अलौकिक है। वो प्रभु से कहता है मुझे दे, मेरे
दे सजा। प्रभु तेरे लोग, तेरी भेड़ें इन्हें माफ कर दे। डू नॉट लेट दिस प्लेग रिमेन ऑन योर पीपल। ऐसे गडरिए चाहिए भाई और बहनों, ये होता है पापा असली। और क्या लिखा है, देन द एंजल ऑफ द लॉर्ड ऑर्डर्ड गैट, फरिश्ते ने दाऊद का दिया कि ये भेड़ों की ऊन करता। आपको मालूम सच्चा गडरिया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। ऐसे भाई और बहनों, प्रेरित ऐसे नबी चाहिए मसीह की देह में, ताकि मसीह की देह कलीसिया तेजस्वी हो, जलाली हो, झुर्रियां दाग धब्बे कलीसिया से दूर हो। और ऐसे प्रभु के भक्त चाहिए जो कहते हैं मुझे तुम्हारे लिए जच्चा जैसी पीड़ा लगी है कि शक्ल तुम्हारे अंदर बन जाए। वो अपनी शक्ल नहीं बनाते कलीसिया में, उनको जरूरत नहीं मग्गों पे अपनी फोटो छापें, पोस्टरों पे अपनी छापें, बड़े बड़े आदमकद पोस्टर लगाएं, हर जगह अपनी अपनी फोटो। मैंने आपको बताया ना, नार्सिसिज्म की स्पिरिट है ये। वो केवल प्रभु को ऊंचा कर, प्रभु की शक्ल तुम्हारे अंदर बन जाए। तो प्रभु का दूत दाऊद का दिल अर्थात प्रभु पिघल जाता। देन द एंजल to tell David to go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Aruna the Jebusite। करुणा आ गई, प्रभु की दया आ गई, लेकिन कहां आई भाई और बहनों? खलियान में, थ्रेशिंग फ्लोर में। जाके अरुणा के खलियान में, थ्रेशिंग फ्लोर में यहोवा के लिए जगवेदी बना। और दाऊद जाता है और अरुणा उसे देख के उसका आदर करने के लिए झुक जाता है। दाऊद उसे बोलता है जगह मुझे दे। और दाऊद कहता है मैं पैसे दूंगा, फ्री नहीं लूंगा, क्योंकि मैं यहोवा को कोई भी चीज अर्पण नहीं करूंगा जिसका मैंने मूल्य नहीं दिया है। और दाऊद वहां पे प्रभु यहोवा के लिए जगवेदी तैयार करता है। वो व्यक्ति कहता है जगह ले लो फ्री में, ये मेरे जानवर हैं, यहाँ पे खलियान में काम कर रहे हैं, इनकी कुर्बानी चढ़ाओ, और ये जो लकड़ी है, हल पंजाली है, इसको आग में जलाओ यहोवा के लिए, सब कुछ ले लो। दाऊद कहता नहीं, मैं यहोवा को फ्री की चीजें, मुफ्त की चीजें नहीं दूंगा। और वो यहोवा परमेश्वर के लिए जगवेदी बनाता है, हालेलुया, और कुर्बानी देता है, और उसकी सुगंध स्वर्ग को चढ़ती है, हालेलुया। और उसी समय वो प्लेग, वो बवा रुक जाती है। आपको मालूम जहां पे ये जगवेदी बनाई किसने? दाऊद ने। ये जगह कौन सी है? हालेलुया। मालूम आपको कौन सी जगह है? ये वही मोरिया पहाड़ है। कौन सा? हालेलुया। जहां पे उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय के दूसरे वचन से आगे पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में यहोवा परमेश्वर हमारे पुरखे इब्राहिम को कहता अपने इकलौते पुत्र को ले जा मोरिया पहाड़ पे, और जहां मैं बताऊंगा वहां उसे कुर्बानी के लिए चढ़ा दे। हमारा पिता इब्राहिम जगवेदी बनाता है और इसहाक को रख देता है। इसहाक इब्राहिम का फ्यूचर है, इसहाक इब्राहिम की डेस्टिनी है, इसहाक ही सब कुछ है। इब्राहिम के बच्चा है, सब कुछ यहोवा के आगे चढ़ा देता है। वही जगह है भाई और बहनों। एक वचन पढ़ लो बाप, दूसरा इतिहास निकालिए जल्दी से, दूसरा इतिहास, हालेलुया, उसका निकालिए आप, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 3, दूसरा इतिहास का 3 अध्याय निकालिए और पहले वचन से पढ़िए। दूसरे इतिहास के 3 अध्याय के पहले वचन से। देन सोलोमन बिगैन टू बिल्ड द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड इन जेरूशलम ऑन द माउंट मोराया। सुलेमान कौन सी जगह मंदिर बनाने लगा यहोवा के लिए? मोरिया पहाड़ पे। कौन सी जगह? वही जगह जहां पे हमारे पिता इब्राहिम ने इसहाक को जगवेदी पे रखा। वेयर द लॉर्ड हैड अपीयर्ड टू हिज फादर डेविड, इट वॉज ऑन द थ्रेशिंग फ्लोर ऑफ अरुणा। समझ रहे हैं? वही जगह जहां इसहाक को जगवेदी पे चढ़ाया गया, वही जगह जहां उसके पिता दाऊद को यहोवा ने जगवेदी बनाने के लिए कहा, उसी जगह सुलेमान ने मंदिर बनाया। आपको मालूम, ये वही पहाड़ जहां पे यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। थ्रेशिंग फ्लोर। उस थ्रेशिंग फ्लोर के ऊपर जो डिमांड करता है, क्या डिमांड करता है? जस्टिस। जहां पे धुलाई होती है, न्याय होता है,
जहां पे पूरे का पूरा हिसाब होता है। उस थ्रेशिंग फ्लोर पे संसार का मुक्तिदाता, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो पाप से अज्ञात था, उसे यहोवा ने आपके मेरे लिए, संपूर्ण जगत के लिए पाप बना दिया। उसी जगह जहां पे हमारे पिता दाऊद ने जगवेदी बनाई, उसी जगह जहां पे हमारे पिता इब्राहिम ने जगवेदी बना के इसहाक को रखा, उसी जगह हैकल बनाई गई। ये वो जगह है जहां पे ऊपर स्वर्ग खुलता है, ऊपर एग्जैक्ट स्वर्ग खुला हुआ है। ये वही जगह जहां स्वर्गदूत था, ऊपर आकाश और पृथ्वी दोनों के मध्य में। थ्रेशिंग फ्लोर वो जगह है। ये वही जगह जहां ऊजा को मार दिया गया था। ये वही जगह है जहां पे धुलाई होगी, जहां पे आपके अंदर से भूसा निकाला जाएगा। भूसा होगा परमेश्वर के। ये वचन पढ़िए जल्दी से, मत्ती 25 सुसमाचार निकाल लीजिए, रचित सुसमाचार, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका आप निकालिए 3 अध्याय, मत्ती 3, आप पढ़ें उसके 11 से, मैं पढ़ता हूं। मत्ती 3 के 11 में, आई बैप्टाइज यू विद वाटर फॉर रिपेंटेंस, बट आफ्टर मी कम्स powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit. यूहन्ना कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। ये है सच्चे सेवक। वो ये नहीं कहते कि हमें अधिकार मिल गया पापा कहलाने का, वो कहते हैं हम कुछ नहीं है। हालेलुया। अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। मैं जो कुछ हूं उसके अनुग्रह से हूं, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सच्चे की बातें होती हैं। वो कहते हैं तुम्हारी शक्ल पकड़ ले, मुझे कीड़े लगी हुई हैं। हालेलुया। भाई और बहन, मैं तो पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, वो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। His fork is in his hand and he will clear the threshold. पढ़े क्या लिखा भाई और बहनों, पढ़िए वचन, मत्ती 4, हिंदी में। मेरे पास हिंदी की बाइबल भी आज मैंने अरेंज की है। एक्चुअली मैं अपने ससुराल में हूँ, घर भी नहीं जा सका, लगभग 1 महीने से यहीं स्टक हूँ, पर प्रभु हमारे संग है। हालेलुया। मत्ती 3 अध्याय का 12 वचन, तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला जूती उठाने, हालेलुया, वह बपतिस्मा देगा। जो सच्चे सेवक है ना, वो अपनी आइडेंटिटी जरूर बताते हैं कि मैं कूड़ा हूं, कुछ है, हमेशा बताएंगे कि लोगों को डेवलप हो, कि लोग उन्हें, ये सच्चे सेवकों की हमेशा निशानी होगी। तो कहते हैं कि वो आग, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा, उसका सूप उसके हाथ में है, खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। साफ कर रहा है इस समय। आपको मालूम ये पृथ्वी पे क्या चल रहा है? क्यों सारे काम धंधे छोड़ के घर में बैठे हो आप ही वो लोग हो जिनको अगर मैं पहले कहता बंदगी या चलोगे, तो आप कहते नहीं 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 नहीं, मुझे तो नौकरी पे जाना है, आज तो मेरी अपॉइंटमेंट है, बहुत बड़ा है, मुझे तो बिजनेस की डील देखनी है। नहीं जी, हमारे तो रिश्तेदारों की शादी, हम नहीं आ सकते। अब घर में बैठे हो आप, सारे बहाने, अब कोई प्लान भी नहीं कर रहे। स्त्रियां मेकअप नहीं कर रही होंगी, अब आप कपड़ों को इस्त्री करके नहीं पहन रहे होंगे, अब आप रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खा सकते, आपकी गाड़ियां खड़ी हैं, धूल पड़ी, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग नहीं कर सकते, अब जूते पॉलिश करने का मन नहीं कर रहा, छूट गया ना सब कुछ। कलीसिया खलियान में है, सेवक नहीं बता रहे, बहुत से में है, उसके हाथ में सूप है, वो कर रहा है, और क्या कर रहा है में, उसका सूप उसके हाथ में, वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। ये खलियान थ्रेशिंग फ्लोर में कलीसिया खड़ी है। समझ रहे आप मेरी बात? वचन मैंने आपको एक एक दिया है बाइबल में से, इसके आगे अपने आप को हलीम कर लीजिए, कलाम के आगे।
वह खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, अच्छी रीति से साफ करेगा, अच्छी रीति से साफ करेगा, और गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। भूसी का कोई काम नहीं। इस भूसी से स्वर्ग गत्ता नहीं बनाता। इस भूसी को यहोवा जलने के लिए फेंकता है। कलीसियाओं के अंदर भूसी भरी पड़ी है। भूसी की भीड़ लेके पादरी अपने आप को कहते हैं हम तो बिशप की सबसे बड़ी कलीसिया हैं। अब कलीसिया आ गई है सफाई। अपने आप को अर्पण करें प्रभु को, उसे कहें मुझे शुद्ध कर, मुझे साफ कर प्रभु। हालेलुया। मेरे जीवन पे दया कर दे, कृपा कर दे। हालेलुया। कृपा कर दे प्रभु। मैं एक बुक पढ़ रहा था, वो बुक बताती है कि इदार जो शब्द है मतलब वो जगह जहाँ पे सफाई होगी भाई और बहनों। तो आप तैयार हैं कि सफाई की जाए? मैंने कल बताया आपको 12 अध्याय दानियेल की पुस्तक में से सफाई उनकी होगी जो धर्मी हैं, ताकि वो और धर्मी और पवित्र हों। और बुद्धिमान इसे समझेंगे, मूर्ख नहीं समझेंगे। वो ये समय जान जाएंगे कैसा समय है। इस वचन को प्रभु यीशु के नाम में आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को भेजो। वॉच पार्टी करो अपने फेसबुक पे, बताओ लोगों को यहोवा का आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। ये है प्रोफेसी प्रभु की ओर से जो होनी चाहिए। प्रोफेसर पापा ये होनी चाहिए असली सच्चा कलाम परमेश्वर का। हालेलुया। आइए आंखें बंद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु, इस थ्रेशिंग फ्लोर में तू हमारी धुलाई कर को तेरे चरणों में देते हैं। शुद्ध कर प्रभु, भूसा निकाल कलीसिया से, तेरे लोगों से भूसा निकाल प्रभु। शुद्ध कर हमारा जीवन, हमें आगे लेके चल। इस कोरोना के बाहर तू लेके जा रहा है, नए आयाम में, नई डिमेंशन में प्रभु। एक नया अभिषेक, एक नया मसा, एक नई बेदारी आने वाली कलीसिया के ऊपर। धर्मी धर्मी होते जाएंगे और विकेड विकेड होते जाएंगे प्रभु। बुद्धिमान समझेंगे तेरे भेदों को, दीन और विनम्र तेरे आगे घुटने टेक के आशीष हासिल करेंगे। बरकत दी, दिखावा दूर कीजिए प्रभु। एक एक भाई बहन को मैं तेरे हाथ में देता हूं प्रभु। मैं भाई संदीप के लिए प्रार्थना करता हूं, सब मिलके भाई संदीप के लिए प्रार्थना करें। भाई संदीप के लिए प्रभु हम तेरे फरिश्तों को खोलते हैं। तेरा लहू उसके ऊपर, उसकी बीवी बच्ची के ऊपर, उसकी माता पे खोलते हैं। तेरे खून की कुदरत, तेरा मसा भाई संदीप पे काम करे प्रभु। जितने भाई बहन इनके परिवार घरानों को तेरे लहू में छिपा देते हैं, एक एक पे अपनी आशीष ले लिए। कृपा कीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैसेज लिख के कि आपको क्या आशीष मिल रही है वचन से, और ज़रूर दूसरों के साथ बांटिएगा। कोशिश करूँगा शाम को फिर वचन आपके साथ शेयर करूँ। और प्लीज़ यूट्यूब पे आप लोगों को हमारे संग जोड़िए, ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो उस पर भी हम ऐसे लाइव करें। यूट्यूब और फेसबुक को मर्ज करके करें प्रभु के लिए, अपने शोभा के लिए, अपने दिखावे के लिए नहीं। मैं कुछ करना चाहता, प्रभु के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे। मैंने पहले भी बोला, अगर आपके दिल में प्रभु डाले, कंपल्शन नहीं है। हम पैसा नहीं मांगेंगे लोगों से ऐसे आके ऑनलाइन अकाउंट में डालो, ये करो वो करो। लेकिन अगर प्रभु आपके हृदय से बात करता है बीज बोने के लिए, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप, हम आपको बताएंगे। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार, आपके घराने को अपने लहू में छिपा के रखे, यीशु मसीह के जलाली नाम में।